Okay, so chapter's name is Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Let's begin by understanding the topic's name first. So let's begin by understanding what is partnership. Okay, so in your earlier classes, like 11th class, you have studied about final accounts, but only for a sole trader, correct? But now we are upgrading our studies and we are learning final accounts for partnership. Let's understand what is partnership first and then understand what is final accounts. Partnership is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. Let's take a very clear example for understanding partnership. I myself started with a business. Okay, now I like 1 year, 2 year passed, and now I have to upgrade my one shop into a two-floor shop, and I don't have that much fund to upgrade. So what I recommended one of my friends to join with me in my business by putting her some capital into it, and we both will, in future will share profit and losses, and both are the real and owners of the company. In this way, I joined her also and me also. What are we doing is we are working for a firm in a partnership. So whenever you join several people together, two or more peoples together in a business, that is known as partnership firm. Now if we talk about what is final accounts, okay, so what is final accounts? In this final accounts, basically we are going to like kind of see two parts. First is income statement and another is balance sheet. If we talk about income statements, what will अच्छा अभी फाइनल अकाउंट से मिलेगा क्या हमें? फाइनल अकाउंट्स करके मिलने क्या वाला है? If we talk about partnership for a final account, हमें फाइनल अकाउंट से मिलने क्या वाला है? So what happens is फाइनल अकाउंट्स करने के बाद फाइनल अकाउंट से आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट निकाल सकते हो. इनकम स्टेटमेंट से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस मिलते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलता है. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हम आगे बहुत अच्छी से ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए और इनडायरेक्ट इनकम कितनी हुई वो देख सकते हैं, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम हमारी कितनी है वो देख सकते हैं. एंड बाय बैलेंस शीट हमें ये पता चलता है कि हमारे कंपनी की असेट्स दैट इज आवर ओन प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज दैट इज पेबल्स कितनी है. So basically in this chapter we are going to learn final accounts for partnership firm. एक पार्टनरशिप फर्म में कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम होती है, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम होती है, कितने एसेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है, ये सब कैसे निकालते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. Now, before moving on to the practical part of this chapter and practical solving of the sums and all, we have to clear our theory part and basic clearly cleared. Okay, so what we are going to do is we are going to first clear all our basics of this chapter, all meanings, definitions, features, functions, everything, and then we are going to go for the practical part. So let's begin with the definition and proper definition of partnership. So according to Indian Partnership Act 1932, Section 4. According to Indian Partnership Act 1932, Section 4, it defines partnership as it is the relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. So basically it is the relationship between two people who have agreed to complete, to get the motive of that firm by bearing the profit is by sharing the profit and bearing the losses of that firm. The next definition is, according to Professor Handy, partnership is a relationship. Partnership is a relation existing between persons competent to make contract. Who agree to carry on a lawful business in a common
with a view to earn private gains. Okay, so it's a in this definition what is clearing is, in this partnership we have to get a agreement between two people who agrees to carry forward that one common motive of that firm by, by sharing some profit and loss ratios and investing capitals and such. So these two are the definitions of partnership. Let's move on to the features of partnership. Okay, so these all are the features of partnership. These are 9 features of partnership which we are going to see one by one in a little more briefing. Okay, so we are not going to waste too much time, but we are going to learn everything in the way that we understand at least what are the features of partnership. अच्छा, अभी पार्टनरशिप को और अच्छे से जानने के लिए what we'll do is we'll clarify and we'll look at some of the features कि पार्टनरशिप की अच्छाइयाँ क्या है. तो we are going to look at some of the features which will clear our all the doubts of partnership. So first feature is agreement. What is agreement? Okay, so let's read and then understand. Partnership is a result of agreement between पार्टनर्स. अच्छा, अभी मेरे एक दोस्त है जिसको मैंने बोला कि आप मेरे इसमें, तुम मेरे इसमें शॉप में या फिर कंपनी में आप इन्वेस्ट करो एंड आप भी एक पार्टनर बन जाओ, ओनर बन जाओ एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको ज्वाइन किया. एक हो गई कि ओरल बात कि जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसको 50-50 शेयर करेंगे. ओरली मैंने उसको बोल दिया. इन फ्यूचर द पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है कि वो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए या फिर कुछ कुछ हो जाए जिससे कोई कंडीशन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिससे वो आपको इनकार कर रही है कि मैं इतना प्रॉफिट लूँगी, आप इतना. सो दिस इज़ व्हाट, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने 50-50 एग्रीमेंट में शेयर करने का डिसाइड किया था. इन फ्यूचर यू डोंट हैव अ प्रूफ व्हेन यू टॉक अबाउट ओरल एग्रीमेंट्स. बट वॉट यू डू एट द सेम टाइम, अगर मैंने उसी पार्टनर को तभी बोल दिया कि भाई आप करो मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, हम दोनों ओनर्स रहेंगे, एक अग्रीमेंट रिटर्न में मैं बना दूंगी कि हम इतना इतना शेयर करने वाले, रेशियो इतना कैपिटल तुम इन्वेस्ट करने वाली हो, इतना मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, एंड लास्ट में हम दोनों की साइन होगी. इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए देन आई शो दैट इन्होंने साइन किया है एंड एग्री किया है इतने इतने रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतने इतने रेशियो में उन्होंने एग्री किया है. सो देर आर 2 kinds of agreement, that is written and oral. So it could be written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court or of law, and such written agreement is known as partnership deed. मैंने आपको बोला एक प्रूफ हो जाता है मेरे पास रिटर्न में कि इन्होंने एग्री किया है, और ये जो प्रूफ, ये जो एग्रीमेंट मैंने रिटर्न में बनाया, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. सो मिनिमम 2 partners are needed to start a partnership firm and the maximum number of partners are 50 according to Companies Act 2013. अच्छा, अभी मिनिमम जो पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए जितने भी मिनिमम पार्टनर्स हमें लगेंगे वो है 2, क्योंकि एक इंसान से तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता. सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर शुड बी 15. ठीक है, 50. लॉफुल बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. कोई भी आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, उसकी परमिशन लॉ से होनी चाहिए. इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज़ नॉट अलाउड बाय स्टेट. कोई ऐसा आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो जो स्टेट अलाउ नहीं करती, तो उसमें पार्टनरशिप एग्री नहीं होगी. द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल business. Sharing of profit and losses. The purpose of partnership is to earn maximum profits. Partners have to share profit and losses according to the ratio given in the agreement. If the agreement is silent about the ratio, then profit and losses sharing will be equal. आपके पार्टनरशिप में आपने जो डिसाइड किया, आपके पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखा होगा वो रेशियो से पार्टनरशिप
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा. बट अगर आपने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, दैट इज 50-50, दैट इज 1:1. व्हाट इज नेक्स्ट? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अच्छा, अभी ये जो पार्टनरशिप है इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? If there's a partnership firm, then the partners will have unlimited liability on their heads. That means कि अगर फ्यूचर में आपके लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है and you have a lot of liabilities but you do not have funds to clear those liabilities, अगर आपके पास liabilities बहुत सारी है, बहुत सारे पेबल्स है, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कैसे? आपको अपने पर्सनल, आपके जो असेट्स है, आपको खुद का घर भी बेचना पड़ सकता है कंपनी की लाइबिलिटीज को पूरा खत्म करने. ठीक है, सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? आपके जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, उनके प्राइवेट जो असेट्स होंगे घर के या फिर कार, वो उनको सोल्ड आउट करने पड़ेंगे कंपनी के लाइबिलिटी को ओवरकम कंप्लीट करने के लिए. The liability of partners is unlimited, joint and several. That is, partners are liable till the last rupee in their pocket. उनके पास जितने पैसे हैं उनको देने पड़ेंगे ताकि कंपनी के जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो सके. If assets of the business is not sufficient to pay liabilities, अगर बिजनेस में इतनी असेट्स नहीं है कि आप लाइबिलिटीज को ओवरकम कर पाए, खत्म कर पाए, तो आपको आपकी पर्सनल असेट्स बेचनी पड़ेगी. देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी यूज्ड. इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इन सॉल्वेंट, देन दिस लाइबिलिटी विल बी borne by the solvent partner. What is next? Registration. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन कैसा होगा अभी इस पॉइंट में हम देखेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005. जो आपका जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र के स्टेट में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट में ही कंपल्सरी है. According to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. महाराष्ट्र के बाहर रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है, मतलब आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of register. जॉइंट ओनरशिप. अच्छा, रजिस्ट्रेशन से क्या पता चला कि महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है. नेक्स्ट इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. आप जब भी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हो, आप अकेले ही उस कंपनी के ओनर नहीं होते, आपके साथ जो आपके पार्टनर्स है वो भी उस कंपनी के ओनर इक्वली होंगे. ठीक है, तो उस केस में आपकी जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी दो लोगों में या जितने पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाती है. सो देयर इज अ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. सो नो पार्टनर कैन बी property for personal use. So no partner can use property for personal use. कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते. ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म. सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट दिया है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, फर्म को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स पे होगी इक्वली. सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. लेट्स सी आवर लास्ट टू features of partnership. First is principal and agent. Each partner works in twofold capacities. For example, principal and agent. A partner acts as a principal of the firm with outsiders and with other partners he acts as an agent. जब पार्टनर अगर पार्टनर किसी आउटसाइडर से बात कर रहा है तब वो एज अ प्रिंसिपल बात करेगा. बट अगर पार्टनर किसी अपने ही कंपनी के पार्टनर से बात कर रहा है तो वो एज अ एजेंट बात करेगा.
नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब कोई भी कंडीशन में अगर पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप तोड़नी है या फिर फर्म क्लोज करना है, उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना होगा. सो फर्स्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. एक एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं. इफ द पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. अगर पार्टनर्स को फर्म ही बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो 14 डेज की नोटिस पहले ही देनी पड़ती है. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, become insolvent or insane. पार्टनर अगर पागल हो जाता है, मर जाता है, रिटायर हो जाता है, उस कंडीशन में भी फर्म आपकी डिसॉल्व हो सकती है. In this way we have just completed our what is partnership and what are the features of partnership. Remaining theoretical part will be cleared in next parts. If you like this video, give a like, share and subscribe. Also share it with your 12th standard friends and look at a series of OCM and SP in the playlist of my account. Thank you.